Hello friends, in today's video session we are going to see the volcanoes, which is a very important endogenetic movement happens beneath the crust of earth. Okay, so it is a sudden movement, so sudden endogenetic movement. There are two such kind of movement, one is earthquake and another one is volcano. So in previous video session we have already discussed earthquake in depth. Now in today's video session we are going to see the volcano. So what is a volcano? Let's see. Hot, solid, liquid and gaseous material are thrown out of the mantle of earth onto the surface of the earth. This process is called as volcanic eruption. So basically इसमें क्या होता है, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी मोल्टन मैग्मा होता है, जो भी रॉक वगैरह होते हैं अर्थ के नीचे, जो हीट होती है उसके वजह से मेल्ट हो जाते हैं, और जहाँ से अर्थ का जो क्रस्ट है वो वीक होता है, जहाँ से वो वीक पोर्शन उन्हें मिलता है वहां से वो इरप्ट होकर बाहर आता है, तो उसे वोल्केनो बोलते हैं. ओके, सो उस वोल्केनो में क्या क्या होता है कि गैसियस कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं कुछ पदार्थ, और कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ओके, तो तीनों का ये मिक्सचर होता है, राइट. सो लेट्स सी अहेड. ड्यूरिंग द प्रोसेस एश, water vapor, various types of poisonous and inflammable gases, hot molten magma, etc. are thrown out. When the molten magma comes out on the surface, it is called as lava. Okay, तो देखो ये एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो भी मोल्टन मैग्मा होता है जब वो अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है तो उसे हम बोलेंगे मैग्मा. ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी रॉक वगैरह होते हैं, जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे मटेरियल होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है. ओके, तो उसको बोलते हैं मैग्मा जब वो अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है. जब वो अर्थ क्रस्ट के बाहर मतलब क्रस्ट के ऊपर आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं, राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. और ये जो प्रोसेस होता है जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से क्या क्या बाहर आता है, वाटर वेपर भी आती है बाहर, क्योंकि हमें पता है कि जमीन के नीचे पानी भी होता है. उसके बाद ऐश आती है, उसके बाद अलग अलग टाइप के पॉइजनस और इन्फ्लेमेबल गैसेस. इन्फ्लेमेबल मतलब क्या होता है कि जो आग पकड़ लेते हैं, दे कैच फायर, लाइक मिथेन और हाइड्रोजन. Okay, hydrogen sulfide or like that. So remember this thing. Then on the basis of the types of eruption, volcanoes can be divided into following types. Okay, so there are two types of volcano. One is central type or conical volcano. They looks like this. This is a central or conical volcano, and second one is the fissure type of volcano. See here, this is the fissure type of volcano. So these are the two main types of volcano on the basis of their eruption format. So see here, you can observe the central type of volcano over here. So this is earth crust, these are the different layers of earth. Okay, earth crust we can say. So here this entire portion is magma. Okay, as that magma get a path to erupt out above the earth crust, it comes like this. Okay, so it breaks the crust over here and it comes like this from this central pipe like structure, and it erupts like this and it forms the volcanic mountain like this. So this is known as central type of volcano. Okay, so same figure shown over here also. This is a central type of volcano, and because of this central or conical volcano, the cone shaped mountain form over here like this. Okay, the picture is shown over here, and the cross section of this particular picture or the conical type of volcano is shown in this figure. So here you can see the lava flow and पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट. सो ये पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट क्या होता है, जो भी मटेरियल वो लावा फ्लो में आता है जब वो यहाँ पे डिपॉजिट होता है तो उसको पायरोक्लास्टिक बोलते हैं. ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना लावा फ्लो याद रखना है. ओके, तो ये इसको मेन वेंट बोलते हैं, राइट. ये सेंट्रल जो पाइप होता है इसे मेन वेंट, और इसको ये जो है ये पैरासाइट वेंट इसे बोला जाता है. ओके, ये जो उसमें से ब्रांचेस ऐसे निकलते हैं, right. So this is a very in-depth diagram of volcanic eruption. Suppose there are some part of magma which solidifies beneath the earth crust, then it is known as dike. Then this is a laccolith, seal, this is a stalk. Means if there is a cave like structure beneath the earth crust and if magma accumulate in that part, then it is known as stalk. Okay, or simply there is a vertical vent like this, and if magma accumulate in that part then it is known as dike, and this entire part it is known as batholith. Okay, so in this way we have seen the volcano, specifically conical volcano in depth over here. Okay, so let's have the another type of volcano, that is a fissure volcano. तो इसमें क्या है, फिशर वोल्केनो में जो जमीन होती है उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक आते हैं, और उस क्रैक में से वोल्केनिक जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है. जो बाहर आते हैं तो हम उसे लावा बोलते हैं, राइट. तो ये लावा रस जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत पतला होता है, बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है. तो उसके वजह से क्या होता है, जैसे ही बाहर आता है तो ऐसे पानी जैसा बहने लगता है वो फिशर के दोनों साइड में, जहां तक फैलता है वहां तक वो प्लेटू फॉर्म करता है. ओके, एक प्लेन रूफटॉप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ओके, तो उसे प्लेटू बोलते हैं हम लोग, राइट. सो जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो एक्सेलेंट एग्जांपल है इस वोल्केनिक इरप्शन का, मींस फिशर टाइप वोल्केनिक इरप्शन का. ओके, सो this is the feature type volcanic eruption. So let's see the details. During the eruption,
molten magma comes out through a pipe like vent inside the earth's surface. The lava spread around the mouth of this vent when it comes out. As a result, cone-shaped mountains start forming and conical volcano mountains are formed. Mount Fujiyama in Japan and Mount Kilimanjaro in Tanzania are an example of central type of volcanoes and conical mountains. Okay, तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे बताया है. तो क्या है बेसिकली कि जो भी मैग्मा होता है वो एक पाइप लाइक जैसा वेंट होता है, उसमें से अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है और इस तरह से फैलता है. वो ज्यादा विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा होता है, तो इसके वजह से ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होता, एक के ऊपर एक उसके लेयर बनते हैं और इस तरह से कोन लाइक माउंटेन फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कोनिकल वोल्केनो और सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो, राइट. तो इसके एग्जांपल कौन से? तो माउंट फुजियामा इन जापान एंड माउंट किलिमांजारो इन टांजानिया. सो देखते हैं ये कहाँ पे एग्जैक्टली. सो ये है हमारा ग्लोब. इस ग्लोब पे ये है हमारा प्यारा भारत. यहाँ पे अगर हम इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री हमें दिखता है, ये है जापान. और इस जापान में यहाँ पे हमें मिलेगा माउंट फुजियामा. ओके. और अगर हम इंडिया मतलब हमारे भारत से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो यहाँ पे देश है ये टांजानिया. और टांजानिया और ये केनिया, इसके बॉर्डर पे हमें इस एरिया में मिलेगा माउंट Kilimanjaro. So that is also a central type of volcano. We have completed this central type of volcano. Then let's move towards the fissure type of volcano. During the eruption, when magma comes out, not form a single vent but many cracks, that is fissures. It is called as fissure type volcanic eruption. The molten material coming out with the eruption spread on the both sides of fissure. As a result, volcanic plateaus are formed. The Deccan Plateau of India has also been formed due to such a type of volcanic eruptions. Okay. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग क्रैक्स, बहुत सारे ऐसे आपको क्रैक्स मिलेंगे जमीन के ऊपर, और उसमें से ये वोल्केनिक लावा बाहर आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा पतला है, ज्यादा विस्कस नहीं, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, तो ये फैल रहा है जमीन के ऊपर इस तरह से, राइट. तो उसके वजह से प्लेटू का फॉर्मेशन होता है. अगर वो लावा गाढ़ा होता है और एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनाते जब जाता है तो ऐसा कोनिकल टाइप माउंटेन फॉर्म होता है, उसे सेंट्रल और कोनिकल वोल्केनो बोलते हैं. और जब वो स्प्रेड होता है तो उसे फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो बोलते हैं. तो ये हमने देखा. उसके बाद जो पीरियोडिसिटी होती है वोल्केनो की, मतलब कितने कितने समय के बाद वो इरप्ट होता है या होता ही नहीं है, तो उसके वजह से उसके और तीन टाइप होते हैं, तो वो हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनोस कैन बी आइडेंटिफाइड. द फर्स्ट वन इज इफ द वोल्केनिक इरप्शन आर रेगुलर इवन इन द प्रेजेंट टाइम, then such volcanoes are called as active volcanoes. For example, Mount Fujiyama in Japan and Mount Stromboli in Mediterranean Sea. Okay, so ये जो माउंट फुजियामा ये जापान के अंदर हमने देखा, और ये जो माउंट स्ट्रोम्बोली है ये इटली के पास है मेडिटेरेनियन सी में. तो कहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी देखते हैं हम लोग? ये हमने इंडिया देखा था, यहाँ से हमें वेस्ट की तरफ जाना है. ये अफ्रीका के नॉर्थ में ये जो वाटर बॉडी हमें दिख रही है ये है मेडिटेरेनियन सी. ओके. और यहाँ पे ये सिसिली आइलैंड है इटली का. तो यहाँ पे ऐसे 4-5 वोल्केनो है अलग अलग, तो उसमें से एक है माउंट स्ट्रोम्बोली ओरियर इन द मेडिटेरेनियन रीजन, राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनो. तो एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं कि ऐसे वोल्केनो को जिसमें से आज तक हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ जो मैग्मा का मटेरियल है, लावा है, वो इरप्ट होता रहता है. ओके. सो दैट इज नोन एज एक्टिव वोल्केनोस. Then, when a volcano has not erupted since long but may become active suddenly, it is called as dormant volcano. For example, Mount Vesuvius in Italy and Mount Katmai in Alaska, Barren Island of India. Okay, so there are three volcanoes which comes under this dormant volcanoes. इसका मतलब क्या? डॉर्मेंट मतलब वो सोया हुआ शेर की तरह होता है, राइट. सो अगर शेर सोया है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब जग जाता है तो पूरा तेल का मचा देता है, राइट. तो इस तरह से डॉर्मेंट वोल्केनो होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि इरप्शन पीरियोडिक होता है, वो बहुत लंबे समय से, मतलब कोई वोल्केनो वहां पे इरप्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो कब इरप्ट हो सकता है, राइट. सो मतलब कोई भी एक सपोज ऐसी बाइक पे आप बैठे हो कि जिसके नीचे बॉम्ब लगा है, वो कब फटेगा आपको पता नहीं. सो दैट इज नोन एज डॉर्मेंट टाइप. ओके. सो ऐसा वोल्केनो होता है कि जो आपको पता ही नहीं कि कब इरप्ट होगा. सो दैट इज नोन एज डॉर्मेंट वोल्केनो. और थर्ड टाइप का वोल्केनो है दोज वोल्केनोस which are not erupted in the past since long and are not likely to erupt in the future are known as extinct volcano. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania. Okay, so कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं कि वो बहुत सालों से, बहुत दशकों से इरप्ट होते ही नहीं है, वो वैसे ही एक बार बन चुका वो वोल्केनिक माउंटेन तो बन चुका, बस उसके बाद वहाँ पे कोई एक्टिविटी देखी नहीं गई है. तो ऐसे वोल्केनो को बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब मरे हुए, मृत. एक बार हो गया बस, उसके बाद कुछ होता नहीं, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी, कुछ इरप्शन वगैरह होते नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो. दैट इज एग्जांपल ऑफ सच वोल्केनो इज किलिमांजारो
माउंट किलिमंजारो एंड टांजानिया, अभी भी हमने देखा। ये जो 3 वोल्केनोज है जो डॉर्मन टाइप के, उसमें आता है माउंट वेसुवियस इन इटली। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये इटली का पोर्शन है। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 3-4 वोल्केनोज ऐसे है यहाँ पे, तो उसमें से एक है माउंट वेसुवियस। एक माउंट स्ट्रोम्बोली भी है जो कि एक्टिव है। जो माउंट वेसुवियस है वो डॉर्मेंट है, मतलब फिलहाल तो कोई इरप्शन हो नहीं रहा है, लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकता है, राइट। उसके बाद है माउंट काटमाई इन अलास्का। अलास्का कहाँ पर है? अमेरिका का पार्ट है, राइट। तो हम इंडिया के ईस्टर्न साइड से भी जा सकते हैं और वेस्टर्न साइड से भी जा सकते हैं। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये है अलास्का रीजन। तो इस रीजन में है यहाँ पर माउंट कटमाई। ओके, तो ये है डॉर्मेंट वोल्केनो यहाँ पे, ये अलास्का रीजन है। ओके, और उसके बाद है बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का बैरन आइलैंड हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा इंडिया। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है हमारा, राइट। तो ये जो अंडमान आइलैंड ग्रुप है, तो इसके बाजू में आपको ये छोटा सा आइलैंड दिखेगा यहाँ पे, राइट, ये वाला दिख रहा है। तो ये है बैरन आइलैंड, तो यहाँ पे है ये डॉर्मेंट वोल्केनो। ओके, सो बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस important fact, might be asked in exam in filling the blanks or match the pair, right? So in this way we have seen the types of volcano on the basis of its eruption and on the basis of periodicity of volcanic eruption. Okay, so let's move ahead. Now we have to answer the questions on the basis of figure 2.18. Okay, so let's see. First one is examine the plate boundaries in the given map and write the names of plate boundaries. Okay, so देखते हैं हम ये plate boundaries। ये है figure 2.18. Okay, so this is a 2.18 and here earthquakes and volcanoes shown in this figure. Okay, this is a entire map of world. Okay, and here in legend you can find the description. यहाँ पर ये जो ग्रे कलर की लाइन है वो क्या दिखा रही है? प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन। ये जो ब्लू लाइन है वो दिखा रही है प्लेट क्रिएटिंग मार्जिन्स। ये ऐसे डॉटेड लाइन है और उसमें जो व्हाइटिश पोर्शन है, मीन्स ऐसे जो बेल्ट है, ये मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है ये देखो, तो ये है अर्थक्वेक जोन। अर्थक्वेक जोन मतलब ये ऐसे एरिया है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आता है। और ये जो पिंक कलर के ट्राइंगल है वो है वोल्केनोस। ओके, तो ये क्या है? प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्री, प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्री, ये समझते हैं। तो प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्री मतलब क्या है कि अगर दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे वो, एक प्लेट ऊपर और एक उसके नीचे दसती जाती है, राइट। तो उसे बोलते हैं कि प्लेट कंज्यूमिंग मतलब क्या है कि एक प्लेट कंज्यूम हो रही है, उसका पार्ट दूसरे प्लेट के नीचे धस रहा है, राइट। सो दैट इज plate consuming boundaries, means they are the conversion boundary, they are moving towards the each other. Okay, and second one is plate creating margins, means what? These blue lines, can you see over here? Here the two continental plates, they are moving away from each other. Okay, so when plates move away from each other, then the crack occurs in that region, and because of that crack, lava comes out. Okay, the magma comes out, becomes lava, and it's spread on the ocean floor or on the land. Okay, so and because of that there is a formation of new continental mass, and that's why it is known as plate creating margin. Okay, तो इस तरह से ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है। प्लेट क्रिएटिंग मार्जिन्स और डाइवर्जन margins, they are the one and the same. Okay, and plate consuming margins or the conversion margin, they are one and the same. So ये जो ग्रे कलर की रेखा है ये है प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग बाउंड्री। ओके, मीन्स दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या दो दो ओशियनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, और ये प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्रीज है। यहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या दो ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। ओके, ये जो बेल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइट, ये जो डॉटेड फॉर्म है उसके अंदर। ओके, तो ये है अर्थक्वेक प्रोन जोन, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग जगह पे, तो ये सारे वोल्केनिक स्पॉट है पूरे वर्ल्ड के मैप में। ओके, तो देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें अलग अलग प्लेट बाउंड्री के नाम पूछे जो मेजर प्लेट्स है। ओके, तो अगर आप ये पूरा मैप देखोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्लेट्स दिखाई देंगे, राइट। तो ये जो अलग अलग प्लेट्स है, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेट्स है तो वो मेजर प्लेट कहलाते हैं, और ये जो छोटे छोटे प्लेट्स है ये नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे एक प्लेट है, देखो ये वाला स्कोटिया प्लेट। ओके, स्कोटिया प्लेट, तो ये माइनर प्लेट्स बोलते हैं। तो ये जो बड़े वाले प्लेट्स है वो कौन से है वो देखते हैं। ये देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, उसके बाद यूरेशियन प्लेट है ये ऊपर, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहाँ पे, ये है पैसिफिक प्लेट, ये है अंटार्कटिक प्लेट, यहाँ पे अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बोलते हैं ऊपर वाले को, ये नीचे वाला जो है ये साउथ अमेरिकन प्लेट बोलते हैं। तो ये ऐसे 7 प्लेट है, 1 2 ये 3 4 5 6 और ये नीचे वाला 7। सो these are the
major plates. Okay, these are 7 major plates, remember this thing. So in this way we have seen the answer of first question. Then move towards the second question. On which part of continents of North and South America are the earthquake prone zone located? Which mountains are located there? Okay, so अर्थ प्रोन जोन पूछे हमको, जो भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऊपर, ये नीचे है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये अर्थक्वेक प्रोन जोन कहाँ पर है? जो वेस्टर्न पार्ट है इस कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, तो ये बेल्ट देखो आप, जो पिंक डॉटेड लाइन्स है और उसके बीच में जो ये व्हाइटिश पोर्शन है, ये है earthquake prone region in North America and South America continent. So it is located on the western front of both the continents. Next question is, in which mountainous zone in Asia does the earthquake prone zone lies? Okay, तो एशिया का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन से हिमालयन माउंटेन्स है, राइट? सो बेसिकली in the range of Himalayan mountain zones you can able to find the earthquake prone zone in Asia. The next question is, in which region are the volcanoes concentrated in Africa? What could be the reasons? So this is Africa. In the eastern part of Africa there is a high concentration of volcanoes, different type of volcanoes. You can see here Kilimanjaro and some other also. So why it is located in the eastern part of Africa, or why it is concentrated here only? Because you can able to observe this plate creating continental margin over here, and because of this plate tectonic movement over here, the volcanic eruptions are common in this region, okay, in the past, and that's why these mountains formed in the eastern part of Africa. Correlate the earthquake region distribution of volcanoes and plate boundaries. Okay, so correlate earthquake region distribution of volcanoes and plate boundaries. So ये तो हमने पहले ही देखा है कि जितने भी आपको डाइवर्जन सॉरी कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज दिखती है, वहां पे आपको दिखेगा कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है। देखो ये जो ग्रे कलर की लाइन है ना, ये क्या है? मैंने बताया था आपको, ये है कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, एक दूसरे की नजदीक आ रही है प्लेट्स। ओके, और उसके वजह से जो फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से एक दूसरे के ऊपर जो कोलिजन होता है, उसके वजह से ट्रिमोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, सडन शॉक फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक उस रीजन में आता है। और जो प्लेट डाइवर्जन बाउंड्री है या कॉन्टिनेंट क्रिएटिंग बाउंड्री उसे बोलते हैं, ये ब्लू कलर की लाइन जो भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वोल्केनोस दिखेंगे। इस लाइन के आसपास बहुत ज्यादा वोल्केनोस देखो आप। प्लेट ये जो कन्वर्जन बाउंड्री वहां पर भी दिखेंगे, लेकिन बहुत कम दिखेंगे। जो मैक्सिमम दिखेंगे आपको वो जो डाइवर्जन बाउंड्री है वहां पर दिखेंगे, राइट? सो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट है पूरे वर्ल्ड में। Let's see the geographical explanation behind all this thing. So by looking figure 2.18 you will understand that plate boundaries are directly related to the areas of earthquake and volcanoes. Most of the volcanoes are located on the plate boundaries. Similarly, the earthquake zones are also seen in the border areas. Okay, जो अभी हमने देखा, the parts of plate boundaries which slides under the crust subdues. Okay, मैंने बताया था आपको कि जो भी प्लेट बाउंड्रीज है वो एक सपोज एक प्लेट बाउंड्री दूसरे बाउंड्री के नीचे धस रही है या उसके नीचे जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं सबड्यूज हो रही है वो, बिकॉज देर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, राइट? सो देर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल, सो सच अ बाउंड्रीज इज नोन एज प्लेट कंज्यूमिंग और सबडक्शन बाउंड्रीज। And in the areas where new material is coming up onto the earth crust, they are called as plate creating boundaries. So plate creating boundaries or the constructive boundaries उसे बोला जाता है। Okay, so they are the divergent plate, they are moving away from each other, that's why there is a eruption of lava, right? So there is formation of new crust, that's why it is known as constructive boundary. Okay, so both process happens continuously, and then they are shown in figure 2.18, which we have already seen, right? So let's see the effects of volcano. So there is a loss of life and property, right? So if volcanic eruption is there, and if there is a human settlement, or if there is a forest and very rich biodiversity area, then definitely there is a loss of life and the property. If it is a human settlement, then it is a physical property, the road infrastructure, rail lines and all these things. If it is a ecosystem over there or the forest area over there, then there is a environmental loss. Okay, so environmental property loss is happen over there. Then sometimes tsunamis get generated due to volcanic eruption occurring below the ocean floor. Okay, अगर समुद्र का जो फ्लोर है, ओशन बेड है, वहां पे अगर सडन मूवमेंट होती है और बहुत सारा मटेरियल इरप्ट होके आता है, तो पानी में वहां पे बहुत ज्यादा असंतुलन निर्माण होता है और उसकी वजह से सुनामी के लहरें आ सकती है। Dust, smoke, ash, gases, water vapor, etc. remains in the atmosphere for a long time. This may create the imbalance in the environment. So उसके वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, थंडरस्टॉर्म जैसे सिचुएशन आ सकती है। ओके, तो
आपने बहुत बार न्यूज़ में वगैरह देखा होगा कि अगर कहीं पे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है और उसमें से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये आपको वाटर साइकिल पता है, बहुत बड़े-बड़े क्लाउड फॉर्म होते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो हॉट एटमॉस्फियर होता है, उसके वजह से जो भी वाटर वेपर वगैरह होता है, वो बहुत जल्दी ऊपर तक जाता है। सर्टेन हाइट के बाद वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है, ओके? और कंडेंसेशन होने के बाद तो उसकी वजह से एसिड रेन भी होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग मटेरियल्स ये जो ऐश के फॉर्म में वगैरह होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उसकी वजह से एसिड रेन भी हो सकता है। लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वोल्केनिक ऐश। तो अभी मैंने बोला कि वोल्केनिक ऐश में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन के अलग-अलग ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर होता है, पोटैश होता है, तो उसके वजह से जो खेती के लिए जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं और वो जो ऐश जमीन पे आके डिपॉजिट होती है, तो उसके वजह से एक फर्टाइल लैंड का निर्माण वहाँ पे हो सकता है। मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। क्योंकि मिनरल का ही तो वो लिक्विड फॉर्म होता है ना, लावा मतलब अलग अलग मिनरल लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसमें। जब वो वहाँ पे कूल डाउन होता है, तो जो पत्थर वहाँ पे मिलते हैं या जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है, तो उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, सो न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और एट अ टाइम्स एन आइलैंड में इवन डिसअपियर। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि एक लैंड मास फॉर्म होता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, और कभी कभी जो अवेलेबल आइलैंड है, मतलब जो पहले थे, तो वो डिसअपियर भी हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज द volcanic that is the effect of volcanic eruption. Then the lakes are formed at the mouth of craters of dead volcanoes when rain water accumulate in them. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा बाउल जैसा क्रिएट होता है, ये वोल्केनो इरप्ट होने के बाद ये ऐसा इस तरह से फ्लो होता है और ऊपर ये ऐसा बाउल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। जब ये पूरा शांत हो जाता है वोल्केनो, और इस बाउल लाइक स्ट्रक्चर में जब बारिश का पानी अकोमुलेट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रेटर्स। ओके, सो ऐसे क्रेटर्स फॉर्म होते हैं जो माउंटेन के ऊपर आपको लेक जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट इज नोन एज क्रेटर्स। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ओके, which we have already seen in the previous video session, and here it is a Sahyadri, the layers of lava deposition due to volcanic eruption. So Sahyadri mountains, they are the volcanic mountains. Let's see this interesting fact about the barren island. It is located in Andaman Sea near the Andaman Nicobar Island. Okay, so I have already told you this is a barren island. Okay, Andaman and Nicobar Islands are located onto the southeast of mainland India. On this archipelago lies the barren island. India is the only active volcano. This volcano was dormant for a long time, but in February 2017 it started erupting. Mainly dust, smoke, mud is coming out of this eruption along with the lava. Okay, तो देखो क्या था, पहले डॉर्मेंट था, तो एक्टिव हो चुका है। अभी कब हुआ? 2017 के फरवरी महीने में एक्टिव हो चुका है वो। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. In next class we will see the exogenetic process, so stay tuned with our YouTube channel. Do like this session, share with your friends so they will get benefited during this lockdown period. Be in touch with study, because after lockdown you might not have to study entire syllabus within a short time span. Okay, so do subscribe to Padhai Se Dosti YouTube channel so that you will get the notification of upcoming video session. So thank you friend, have a great day, happy learning.